باریک چیز اسے فارسی میں کہتے ہیں درد تہجام. چراغوں کو اچھال، ایک ہی تو ہے سمجھنے والا. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے، چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے، ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی واہ واہ میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. اب شرکت کریں دوستو. بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا ڈاکٹر صاحب کیا کہنا ہے؟ ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. اور جنازے پر میرے لکھ دینا یارو. یہ شعر سنیے. میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ لوگ، آپ میرے امین ہیں. میں آپ کو یہ شعر دے کر جا رہا ہوں. کبھی ایسا موقع ہے تو یہ میری گزارش کو قبول کیجیے گا. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے. جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، کیا کہنا ہے؟ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا، محبت کرنے والا. اب ایک غزل اور سنا دیں. جی نہیں، یہ بھی کوئی زیادہ دنوں کی نہیں ہے، ادھر ادھر کی ہے. یہ تو کسی ٹیلی ویژن کے مشاعرے میں آ گئی ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ بھی تازہ غزل ہی سمجھیے اس کو. اور مزے میں سنیے گا ذرا سا، بہت بڑھیا موڈ بنا کے. جی. بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے. 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 میں پینا چاہتا ہوں، پلا دینی چاہیے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے. کیا کہنے ہیں؟ بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے. واہ. میں پینا چاہتا ہوں، پلا دینی چاہیے. اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں. اللہ برکتوں ہے سے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے. اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں. واہ واہ واہ. ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے. اب یہاں سے میرے ساتھ ہو جائیں سب. ہے جتنی پونجی پاس. اور بتائیں کہ میں نے شعر کہہ لیا. مجھے بتائیے گا کہ میں نے شعر کہہ لیا. مجھے بتائیے گا آپ کیا میرا شعر ہو گیا. سنیں عرض کیا ہے کہ یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. واہ واہ. یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے. کیا کہنے ہیں؟ یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے. مجھ کو بھی چاہیے کہ کروں خود کا سامنا، تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ. سستا نہیں، سب سے اچھا. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ
प्रोग्राम फरमान इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हम जिन्स रिश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया नाजायज, जायज ठहराने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। हम जिन्स परस्तों के हुकूक के अलंबरदारों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मायूसी, कहा लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा की कार्रवाई आज तीसरे रोज भी हंगामों की नजर। मुजफ्फरनगर में बच्चों की अमवात, तेलंगाना समेत कई मामलों पर अपोजिशन की हंगामा आई। हुकूमत ने कहा तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मई में होंगे आम इंतखाबात। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर ताअतुल बरकरार, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत बनाने के लिए बुला सकते हैं बीजेपी को। और नारायण साईं ने इस्मत रेजी के जुर्म का किया इकरार, पुलिस का दावा
خبریں تفصیل سے۔ ہم جنسی تعلقات کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ان رشتوں کو جائز ٹھہرانے والے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو خارج کر دیا ہے۔ جنتا دل یو نے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سچائی سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ 2 جولائی 2009 کو دہلی ہائی کورٹ نے ہم جنس تعلقات کو جائز قرار دیا تھا۔ مختلف مذہبی اور سماجی تنظیموں نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں کے ذریعے حل کیا جانے والا نہیں، بلکہ یہ کام مقننہ کا ہے کہ وہ ہم جنسی تعلقات کو ناجائز ٹھہرانے والے آئین کی دفعہ 377 کو ختم کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے۔ جسٹس جی ایس سنگھوی اور جسٹس ایس جے مکھوپادھیائے کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں دہلی ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی ویلڈ پروویژن ہے اور اگر یونین آف انڈیا اس کو اپنے اسٹیچوٹ بک سے ہٹانا چاہتی ہے تو ان کو اپنی لبرٹی ہے، لیکن جو دہلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہے جیسے لگ رہا ہے اوپر سے، تو ہماری لڑائی جاری رہے گی، یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ ہم جنس پرستی کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر قانون کپل سبل نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام یہ طے کرنا ہے کہ آیا کوئی قانون آئینی ہے یا نہیں، اور پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا حق ہے کہ یہ طے کرنا کہ کوئی قانون سنویدھانک ہے یا نہیں سنویدھانک ہے، اور پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا۔ وہ اپنا حق ادا کریں گے، ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ جے ڈی یو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کو سچائیوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جو پلٹ دیا اس کے ساتھ ہم سہمت نہیں ہیں۔ یہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو ہے بالکل ٹھیک تھا۔ اب سچائی سے کوئی آنکھ موند لے اور کہے کہ نہیں صاحب صبح نہیں ہوا، تو اس کا تو کوئی ارتھ نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے ہم کو لگتا ہے جب سے اس سرشٹی کی رچنا ہوئی ہے تب سے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے گیند حکومت کے پالے میں ڈال دی ہے۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ حکومت اس معاملے پر کیا قدم اٹھاتی ہے۔ بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز۔ اس فیصلے کو ہم جنس پرستوں اور ان کے حقوق کے علمبرداروں نے ایک بڑا جھٹکے سے تعبیر کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ حقوق حاصل کرنے کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ Supreme Court has not gone by constitutional morality, and what they have done is actually taking the country back. When the whole world is moving forward on human rights issues, our country is going back. It's a very, very bad judgment. I was so trusting about the Supreme Court judgment, which is top court in this country, and I'm very disappointed. I'm also very proud to be a transsexual woman. It's tremendously disappointing, and there were a lot of hopes vested. It had been a long fight of 13 years. So we are terribly disappointed with the verdict, and extremely disappointed and saddened, and I have no words that can explain my disappointment. This is such a setback that this is a denying of rights of a set of people who, just the day after, yesterday was the World Human Rights Day, and today we go back denying a set of people their rights. ہم بڑے نراشاجنک ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اس پرکار کے جو ہے ورڈکٹ سے، لیکن ہم جو ہے ہار نہیں گئے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں الپ ویرام ہے میرے لیے، اور یہ پورن ویرام کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم آگے جائیں گے، ہم آگے اور لڑیں گے۔ بھارت ایک سوتنتر دیش ہے اور اسے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم جیے کیسے۔ ایک تو پہلے دلی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا تب ہم خوش ہو گئے تھے کہ ناؤ ہم اپنی لائف آسانی سے جی سکتے ہیں، اور ابھی اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے واپس ایک مذاق بنا دیا ہے۔ ہمیں کافی نراشا ہوئی ہے یہ ججمنٹ سن کے، بٹ ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ ہمیں یہ ججمنٹ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی سوسائٹی کے ساتھ کافی کام کرنا باقی ہے، اپنے بارے میں ان کو سمجھانا باقی ہے۔ شاید ہمیں ریپیٹیشن کرنا پڑے یا پارلیمنٹ کے تھرو جانا پڑے۔ دیکھیے ہم پروٹیسٹ کریں گے، بہت زور شور سے پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم اب تک لڑتے آئے ہیں اور ہم اپنے حقوق کے لیے آخر تک لڑتے رہیں گے۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل اندرا جے سنگھ نے ہم جنس پرستی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے عدم اتفاق کیا ہے۔ اندرا جے سنگھ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 21 کی صحیح تشریح کی ضرورت ہے۔ 51 کے انٹرپریٹیشن کا سوال تھا، اور میں مانتی ہوں کہ اس دیش میں ہر ویکتی کو اپنے ہی درشٹی کون سے اپنا جیون جینے کا ادھیکار ہے، مولبھوت ادھیکار ہے۔
देखिए, मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। पॉजिटिव तो मुझे देखना पड़ेगा, वाकई नेगेटिव तो मैंने बता दिया आपको। मानती हूं कि मेरा जो रोल है, एएसजी का रोल, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का रोल है। इसके अलावा इस देश में हर इंसान को जजमेंट की फेयर क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है। हम जिन्स परस्ती के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजहबी रहनुमाओं के रद्दमल सामने आ रहे हैं। ईसाई मजहबी रहनुमा फादर डोमिनिक एमनुअल ने कहा कि हम जिन्स परस्तों को मुजरिम नहीं मानना चाहिए। तो HIV एड्स के जो केस हैं वो बढ़ेंगे और जो सरकार ये लोगों के अंदर स्वतंत्रता मिल जाएगी तो इस प्रकार के अपराध और बढ़ेंगे। और हम तो ये सदा कहते आए हैं कि चर्च इसका सदा विरोध करता रहा है, मतलब कि जो समलैंगिक संबंध हैं वो हम हमेशा इसके विरुद्ध रहे हैं, परंतु हम उनको क्रिमिनल्स या अपराधी नहीं मानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील का। कोर्ट के समलैंगिक डिस्ट्रिक्ट पे के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। हमारे साथ एजाल नकुल साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले पे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 377 आईपीसी का जो प्रोविजन है उसमें अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट्स होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को एक्सेप्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया है और कहा है कि 377 आईपीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन ऑफ लॉ है और वो उसमें अगर कोई इस तरह के काम करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। तो ये आपकी तरफ से क्या दलील दी गई थी इस पूरे मामले? हमने कुरान और हदीस की तरफ से दलील दी थी और हमने ये कहा था कि कुरान और हदीस इसको एक क्राइम मानता है। सारी मुस्लिम कंट्रीज में ये क्राइम है और इसलिए 377 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और हिंदुस्तान के कल्चरल और रिलीजियस एथॉस से भी बिल्कुल उससे मेल खाता है और इवन दूसरी कम्युनिटीज के लोग, हिंदूज और क्रिश्चियन, सबने इसको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों को माना है और आज दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी हम जिनसी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी जाहिर की गई। And dismaying. And India, in fact, in the last years has been saying at the UN Human Rights Commission that this Delhi High Court judgment is an example of India's progress on human rights. So it is very, very unfortunate that we are taking these retrogressive steps and the Supreme Court has chosen to take the lead in taking India backwards. But I don't think all is lost. I think there is, let's say, the opinion of the government is very clear. और अब रुख करते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज तीसरे रोज भी हंगामों की नजर हो गई। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात, तेलंगाना, महंगाई और दीगर मामले पर काफी हंगामा हुआ। इन हंगामों की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतादिद मरतबा मुलतवी कर दी गई। हंगामे के सबब लोकसभा में सीमा आंध्रा के अरकान के जरिए पेश अदम एतमाद तहरीक पर बहस नहीं हो सकी। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का कहना है कि हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल करेगी और आम इंतखाबात तय शुदा वक्त के मुताबिक मई में होंगे। कमलनाथ का कहना है कि तेलंगाना मुखालिफ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाए जाने के मनसूबे से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो वो कामयाब नहीं होगी चूंकि हुकूमत के पास दरकार नंबर्स हैं। कमलनाथ ने मजीद कहा कि अब तक तेलुगु देशम के सिर्फ 4 अरकान पार्लियामान ने तहरीक के लिए लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को नोटिस दी है और स्पीकर इस मामले पर उसूल और ज़वाबित की रोशनी में फैसला करेंगी। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने जेपीसी रिपोर्ट के मामले में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के तरीकेकार को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि हम जेपीसी रिपोर्ट पर बहस नहीं बल्कि इसके पेश होने के खिलाफ थे। जहां तक जेपीसी रिपोर्ट का सवाल है तो सदन में
लोकसभा स्पीकर ने हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया और अब प्रेस स्टेटमेंट लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा इशू किया जा रहा है सफाई देते हुए कि नियम और कानून क्या है। इसकी चर्चा तो सदन में होनी चाहिए ना। हमने ये नहीं कहा कि हम उस पर जेपीसी रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं, हमने ये कहा था लिख के स्पीकर को कि ये रिपोर्ट पेश होना ही नहीं देना चाहिए। और इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जब कोई मंत्री कागज पेश करने के लिए खड़ा होता है और कोई सदस्य अगर सही एतराज करता है तो उस कागज को टेबल पर रखने से मंत्री को रोक दिया जाता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, म्यूजिक, क्रिकेट, कॉमेडी, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गैर मशरूत तायद करने का इशारा दे चुकी है, लेकिन आप लीडर अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात की तायद न लेंगे और न हुकूमत बनाने के लिए किसी की हिमायत करेंगे। इस बीच खबरें गर्म हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस की नाकामी को अवाम का फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी असेंबली इंतखाबात में हार के बाद आम इंतखाबात में जीत हासिल कर चुकी है। विकल्प ढूंढते हैं, कभी आपको समर्थन देते हैं, कभी आपका विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र की एक व्यवस्था है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब चुनाव जीतते हैं या हारते हैं तो उसमें एक रणनीति होती है, एक स्थानीय व्यवस्थाएं होती हैं, उस समय के परिप्रेक्ष्य होते हैं। दिल्ली बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हर्षवर्धन ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही किसी पार्टी की हिमायत करेगी। मेरी बाइक कल है, कोई मेरी बाइक आज है। कांग्रेस ने कहा है कि समर्थन देने को तैयार है, हम आपको वो भी अनकंडीशनल, आप भी टीम हाँ, तो हम कहते हैं आप बनाए ना, जो आप सरकार बनाए, कांग्रेस के समर्थन से हम स्वागत करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हम हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव का कहना है कि सियासी पार्टियों का असली इम्तिहान लोकसभा इंतखाबात में होगा। मुलायम सिंह यादव ने ईटीवी दिल्ली के ब्यूरो चीफ अशित कुणाल से बातचीत करते हुए मोदी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मीडिया पर इल्जाम लगाया। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी हैं। मुलायम सिंह जी, किस तरीके से इन चुनाव नतीजों को देखते हैं? क्या कोई संदेश छुपा हुआ है इन चुनाव? अभी अधूरा है चुनाव, अभी कोई नतीजों से ज्यादा गंभीरता नहीं हम लेते हैं। मतलब कांग्रेस की चुनाव हवा आ रहा है, ये क्या विधानसभा, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, चुनाव विधानसभा का है। असली चुनाव आ रहा है लोकसभा का।
उसका इंतजार कीजिए आप। कांग्रेस की जो हार हुई है नेताजी, उसको लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व से वो समीक्षा कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, वो कांग्रेस को पूछ रहा है। मोदी की लहर चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं भाजपा के लोग। याद नहीं, तूफान चल रहा है आसमान। सपा की क्या भूमिका होगी अब? मीडिया तो मोदी से मिला हुआ है। सुनने का भाई साहब, मीडिया मोदी से क्यों मिला हुआ है? यहाँ बातचीत मोदी और मोदी चल रहा है। मुल्क की 4 रियासतों में कांग्रेस की शिकस्त और बीजेपी की कामयाबी के बाद कांग्रेस अपनी नाकामियों की वजूहात ढूंढ रही है। कांग्रेस अपोजिशन जमातों के अलावा कुछ पर वोटरों को गुमराह करने का इल्जाम आयद कर रही है, जबकि कुछ मुस्लिम तंजीमों से भी कांग्रेस को शिकायत है। जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी की जानिब से कांग्रेस पर तनकीद की गई थी कि कांग्रेस बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट मांग रही है। इस इल्जाम पर कांग्रेस ने महमूद मदनी को बीजेपी का हिमायती करार दिया था। कांग्रेस के दीगर लीडरान ने भी महमूद मदनी पर मफाद परस्ती का इल्जाम लगाया था और इस तरह के बयानात को मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बताया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के जमीयत के लीडरान मदनी पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। 4 सूबे के का जो असर है वो पश्चिम बंगाल पर कतई नहीं है। इनका मेंबर पार्लियामेंट का वक्त खत्म हो रहा है। अब ये बहुत ही परेशान है कि ये कहां से आएंगे। तो कांग्रेस, उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त बीजेपी का लहर चल रहा है, तो बीजेपी हिमायत में महज अपने सीट को महफूज रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ताकि कल होकर के बीजेपी जब पावर में आए तो उनका मुफाद पूरा हो सके। गलत बात है। महमूद मदनी का कहने का मंशा ये है कि बीजेपी के हवा खड़ा करके, बीजेपी के भूत दिखा करके वोट मांगना नहीं चाहिए। अपनी ताकत दिखाइए, अपने इम्प्लीमेंट दिखाइए, काम दिखाइए, वोट मांगिए। महमूद मदनी अगर इतने बड़े कारीगर है तो मुल्क का कारीगर मानना चाहिए उसको। हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अब आइंदा बरस होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात ने सियासी माहौल में गर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में कांग्रेस और जमीयतुल उलमा हिंद के रिश्तों का वोंट किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। सूरत पुलिस ने दावा किया है कि आसाराम बापू के बेटे नारायण साई ने अपने ऊपर लगे आबरूरेजी के इल्जाम को कमोबेश कबूल कर लिया है। नारायण साई पर गुजरात के शहर सूरत की खातून ने इस्मत दरी का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का कहना है कि गहरी पूछताछ के दौरान नारायण साई ने सूरत की खातून के जरिए लगाए गए इस्मत दरी के इल्जाम को तकरीबन कबूल कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि नारायण साई ने अपनी 8 खातून अकीदतमंदों के साथ जिस्मानी रिश्ते होने का एतराफ किया है। मैं उनसे काफी घनिष्ठ पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने काफी खुलासे किए हैं। जो मेन एलिगेशन रेप का है, मोरलेस ही हैज एक्सेप्टेड इट। और जो दूसरा एक मोक्ष के बारे में था कि जिसका लड़का है, उसके बारे में भी हैज एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। उसके अलावा काफी चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने बहुत सी जानकारियां नहीं दी हैं। उसके लिए हम लोग फर्दर रिमांड की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने करीब 8 और रिलेशनशिप्स कबूल किए हैं। और वही रुख करते हैं दिल्ली का। नाज़रीन, आपको जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली में इंतखाबी नतायज के बाद जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, कोई भी पार्टी वहां पर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गैर मशरूत तायद की भी बात की है। आज बीजेपी ने वही राग अलापा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कहा हम किसी की तायद न लेंगे और न देंगे, बीजेपी भी अब यही कह रही है। आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे चीफ ब्यूरो अशीत कुनाल से। अशीत, दिल्ली में जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल रहेगा? देखिए जिलानी, एकदम बदली हुई सियासत का ये नया अंदाज है। ऐसे वक्त में जब राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, ऐसे में अगर ये कहें कि आम आदमी पार्टी का असर है कि कोई भी पार्टी सत्ता और सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो एक नई राजनीति की शुरुआत तो होती हुई दिख रही है भारतीय राजनीति में। और इससे पहले भी अगर हम देखें, इतिहास गवाह रहा है कि किस तरीके से
अगर अल्पमत सरकारें होती हैं तो बहुमत का जुगाड़ किया जाता है, दूसरे पार्टियों के विधायकों को तोड़ा जाता है, निर्दलीय